name of Jesus we pray. Amen and amen. I say, Father, we come to you. Touch my life. Improve my life. Give me the grace to understand. Precious word of God. Thank you, Lord Jesus, for the gift of life. Thank you for this day. I am in your holy presence. Thank you, Lord Jesus. Father, I am here to listen to you. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Second Timotheus, chapter number 1, verse number 7. Yes, please read. क्योंकि परमेश्वर ने हमें वह की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। So, as you know, we are dealing with subject called the dealing with the spirits. As you know, that we are dealing with a subject called dealing with the spirits. और जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो सीख रहे हैं उन उन्वानात में से एक है कि इस तरह से हम रूहों का इम्तियाज कर सकते हैं, कैसे रूहों के साथ डील कर सकते हैं। This world is full of the spirits. और ये पूरी दुनिया रूहों से भरी हुई है You can name it और आप उनके नाम भी दे सकते हैं, much more. बहुत ज्यादा। According to this scripture, और इस हवाले के मुताबिक so in this whole scripture, और इस हवाले में you will find the solution. और इसमें आप हल ढूंढ सकते हैं How a believer can deliver or how a believer can overcome the spirit of fear. और कैसे एक ईमानदार रहाई पा सकता है या उस पर फतह हासिल कर सकता है डर की रूह। There is a fear. और डर है, It is not from God. ये खुदा की तरफ से नहीं है। Let's read it in our language. और हम उर्दू में पढ़ेंगे। 2 Timothy chapter 1 verse 7. क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं So, बल्कि कुदरत Scripture is mentioning God. और यहाँ पर जो कलाम हमें बता रहा है वो है खुदा। So, the scripture is saying God, और कलाम कह रहा है खुदा, not a person. एक शख्स के बारे में नहीं। And same your Bible says that God is a spirit. और जैसा कि कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि खुदा रूह है Spirit can give spirit. और रूह दे सकती है। Are we together? क्या मेरे साथ है? The Bible is saying, for God has not given us the spirit of fear. और कलाम कह रहा है कि क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, God never give you the spirit of fear. और खुदा ने आपको डर की या दहशत की रूह नहीं दी। Tell your neighbor, साथ वाली से कहिएगा, if you are facing fear, अगर आज तू सामना कर रहा है किसी डर का, any fear, कोई भी डर तेरी जिंदगी में है, tell him, तो उससे बताएं, उससे कहें, it is not from your God. और ये तेरे खुदा की तरफ से नहीं है। Yes. हाँ, It is not from you. और ये खुदा की तरफ से नहीं है। Now, the part B. और अब उसका दूसरा हिस्सा आयत का, But, लेकिन whenever you read in the Bible word but, लेकिन जब कभी भी आप लेकिन का लफ्ज कलाम मुकद्दस में देखते हैं, मगर, but, या लेकिन,
It means इसका मतलब है after this word, इस लफ्ज के बाद जो आएगा there will be the solution of the question before but. और जो लेकिन से पहले सवाल किया गया उसका जवाब इसी में मौजूद होगा दूसरे हिस्से में। So God has not given us the spirit of fear, number one. और पहले नंबर पर कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, नहीं, God did not give it. और खुदा ने हमें नहीं दी दहशत की रूह, But of power. लेकिन कुदरत की। Which spirit? कौन सी रूह? कुदरत की। Power. Right? पावर कुदरत की, So power is a spirit. और कुदरत वो रूह है। Do you know the scripture? क्या आप जानते हैं हवाले को? The Bible says, when the Holy Spirit come upon you, और कलाम कहता है कि जब रूह तुम पर उतरेगा you shall receive power. और तुम ताकत पाओगे। When the fear comes on people, और जब लोगों पर डर उतरता है, fear does not come first. और पहले डर नहीं आता, First the spirit comes on them. और पहले रूह उतरती है उन पर, Then the fear. फिर डर। Because spirit of fear is a spirit. और क्योंकि जो डर की रूह है वो एक रूह है। Hello? Are you with me? Now, and of love. और मोहब्बत की। So, if the person do not have love in his heart, और अगर किसी शख्स के दिल में मोहब्बत नहीं है, it doesn't mean he don't have love. और इसका ये मतलब नहीं है कि उसका दिल मोहब्बत से He खाली है, don't have the spirit of love. उसके पास मोहब्बत की रूह नहीं है। If I give you the definition, और अगर मैं आज आप इसकी डेफिनेशन आपको बयान करूं, if you want to see the spirit of love, और अगर आप देखें मोहब्बत की रूह, Christ is a spirit of love. और यीशु मसीह हमारा मोहब्बत की रूह है। If you want to see love, और अगर आप देखना चाहते हैं मोहब्बत को, go and see the life of Jesus. You will और find the जाएं spirit of love. और जाएं आप देखें यीशु मसीह की जिंदगी को, वहां पर आपको मोहब्बत मिल जाएगी। So number 3, और तीसरे नंबर पर, and of a sound mind. और तरबियत की रूह। So there are 3 spirits और 3 किस्म की रूहें हैं यहाँ, after the word but, और लेकिन और या मगर के बाद, and that one spirit is before but. और एक ऐसी रूह है जो कि लेकिन या मगर से पहले है। I'll read it in Hindi. और हिंदी में पढ़ेंगे, 3 spirits before, after, and 1 spirit before. एक आयत से पहले और 3 एक लेकिन से पहले और 3 लेकिन के In बाद। one verse, there are 4 spirits. और एक आयत में ही हमें 4 रूहों का बताया गया है। सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा, Samarth, प्रेम Prem, और संयम की आत्मा। Sanyam. These 3 spirits, और ये 3 रूहें, these spirits are opposite of और fear. और ये तीनों मुखालिफ हैं डर के। Whenever you miss these 3 spirits, और जब कभी आपने इन तीनों रूहों को खो दिया, the fear, और फिर जो डर की रूह है वो हावी हो जाएगी। let's have a conversation. और आए हम इस पर बात करें। The people you are sitting here, और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, I 100% sure, और मैं 100% इस बात में कोई शक नहीं, every one of you और आप में से हर एक have a fear को किसी न किसी चीज का डर है, of something. किसी भी चीज का। I'm not talking about demons. Just left this thought. और अपने जहन में से ये बात निकाल दे कि कोई बदरूहों का I'm not या talking about बुरी demons. रूहों का डर नहीं, ये I'm नहीं, not talking about demons. मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही। I'm just talking about the word fear. और मैं दुनियावी चीजों के डरों की बात कर रहा हूँ। If a person do not have enough encouragement to speak in a crowd, और जो अगर किसी लड़की को बड़े मजमे में बोलने की हौसला ही नहीं है उसमें, what does it mean? तो इसका मतलब क्या हुआ? Fear. स्पिरिट ऑफ फियर। Fear from fire. और आग का डर, Fear of rain. और बारिश का डर, Especially fear of darkness. और अंधेरे का डर। How many people face this in childhood? बचपन से कितने लोग हैं जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म के डरों का सामना किया है? Fear of speaking or giving an answer. और जवाब देने का या किसी को जवाब देने का या बोलने का डर। When the teacher asks you a question and you have fear. और जब उस्ताद आपसे कोई सवाल करे और आप उसका जवाब ना दे सके और आपको डर लगे, Am I wrong or right? क्या मैं सही हूँ या गलत? You will think it. और आप इसके बारे में सोचेंगे। So let's talk to 1 or 2%. और हम 1 या 2 से बात करते हैं। What you
feel in your life? Which kind of fear you have? और किस किस्म का डर है आपके अंदर? I'm talking to you. Yes. Anyone. या जो सिकनेस हमें कुछ लोग किसी एक किदा और फिर मैरिज से रिलेटेड और फिर एज रिलेटेड Fear. Any kind of fear. Yes. किसी भी तरह का डर. What? I already see. Do it together. क्या आप मेरे साथ हैं? Today, when we will read one scripture, और जब हम एक वाला पढ़ेंगे what are the causes of the fear? और वजूहात क्या है डर की, खौफ करता क्या है? What he does to you? और ये खौफ आपके साथ क्या कर सकता है, You will be amazed. और आप हैरान होंगे. Let me start by this. और आए हम इससे शुरू करें. Fear डर can hide your identity. वो आपकी पहचान को छुपा सकता है. Right now. A fear can hide your identity. वो आपके पहचान को छुपा सकता है. What you are originally. और जो कि आप असलियत में है, Originally what you are. और असलियत में आप जो है, Fear can hide it. और डर उसको, आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी शख्सियत को जो असलियत में है उसे छुपा देता है. Are you understanding me? क्या आपको समझ आ रही है इस बात की? Tell your neighbor blessing और अपने साथ वाले कैसे कि बरकत is a spirit. और एक रूह है. If a person is having a blessing, और अगर कोई शख्स बरकत रखता है he carry a spirit of blessing. और वो रूह की बरकत की रूह रखता है. If a person having a favor of God, और अगर किसी पर खुदा की फेवर है, it means the spirit of favor is upon him. और इसका मतलब है कि जो फेवर की स्पिरिट है वो या रूह है उसके साथ है. If a person having a power, और अगर कोई शख्स ताकत रखता है the spirit of power is upon him. और उस पर ताकत की रूह है. If a person having a love, और अगर कोई शख्स मोहब्बत रखता the spirit of love is on him. है और उस पर मोहब्बत की रूह है. If a person having a revelation और अगर कोई मुकाशफात रखता है inside of him, और उसके अंदर the मुकाशफात भरे हैं spirit of revelation is on और him. उसके ऊपर मुकाशफात की रूह है. Same like this. और बिल्कुल इसी तरह If a person having a fear, और अगर कि कोई शख्स डर रखता है having a spirit of fear upon his life, और फिर इसका मतलब है कि उसके ऊपर डर की रूह है. I speak into your life. और मैं आपकी जिंदगी पर बोलती हूँ, Today, any kind of fear, और आज के दिन किसी भी किस्म का डर, let that fear be removed by the power of the Holy Spirit. और से हर तरह का डर खत्म हो आपकी Fear to जिंदगी से. share your exact age. और डर इस बात का आपकी असली उम्र को दिखाने Fear का, to share your exact disease. कि असली बीमारी बताने का डर. No matter how critical it is. और ये माने नहीं कि वो कितनी बीमारी पेचीदा है. Any private issue. कोई भी स्थिति You मसला do not have enough power to share with your close ones. आपके करीब चीजों से भी आप उसको ताकत नहीं रखते कि वो बांट सके. Spirit of fear is on you. आप पर डर की रूह है. Even you do not have mouth, और हत्ता कि आपके पास वो मुंह ही नहीं, you can speak to your own God. आप अपने खुदा से भी उसके बारे में बात कर सके God, कि खुदा, I have this issue. मेरे साथ ये मसला चल रहा है. Why? क्यों? Because before you talk to the God who is spirit, और इससे पहले कि आप खुदा से बात करें जो कि रूह है, you already have the spirit of fear. और आपके पास पहले ही आप पर रूह मौजूद है जो कि डर की रूह है. Today is solution. और आज का हल का दिन है. Today we are dealing with this called spirit of fear. और जिससे आज हम जिसके बारे में हम सीख रहे हैं वो है डर की रूह. No more fear. और ज्यादा डर नहीं. Tell your neighbor, no more fear. और साथ वाले से कहीं कोई डर नहीं. Are we together? क्या मेरे साथ है? Most of the people बहुत से लोग in their life, अपनी जिंदगियों में they have fear उनके पास डर है. in certain areas. और जिंदगी के कुछ खास किस्म के हिस्सों में They have enough knowledge about Jesus, उनके पास यीशु मसीह से मुतल्लिक एक खास किस्म का but, है, but they have enough kind of fear. लेकिन उनके पास इतना ही डर भी है. They do not have power to share. और उनके पास ये ताकत नहीं कि वो किसी से बांट सके उस Then डर the को. questioning, और फिर सवालात, what people will say, और लोग क्या कहेंगे, what my father will say, मेरे अब्बू क्या कहेंगे, what my mother will say, मेरी अम्मी क्या कहेंगी, what my husband will say, मेरे हस्बैंड क्या कहेंगे, what my relative will say. और मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे. This is called the spirit of fear. और इसके कहेंगे हमें डर की रूह. We together. क्या मेरे साथ है? Many people, बहुत से लोग they have fear. उनको डर है.
in their life. उनकी जिंदगियों में। That fear, ये डर exactly what this spirit can do is number one. और जो सबसे हाथ ये काम करती है पहले नंबर पर It hide your Identity. exact talents. और ये आपका अपनी जो भी सलाहियत मौजूद है उसे छुपा देती है। Let's open the scripture about talents. और आए हम सलाहियतों के बारे में देखते हैं एक हवाला। How many people knows about the scripture about talents? Matthew chapter 25 verse 14. मत्ती 25 बाब 25 verse 14. 24 आयत 14 आयत. और 14 आयत 24 verse 14. 24 बाब उसकी 14 आयत। Kolaba antra velenosia rabaha. Yes, Matthew 24, the Gospel of Matthew, chapter number 24 and verse number 14. और आज का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। So chapter 25, 24 कह के 24 खुलवा दिया. 24, 14, 25, chapter 25 है, 25. 25 Yes. So the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants and delivered unto them his goods. And unto one he gave 5 talents. How many? 5 To another 2, and to another 1. To every man according to his several ability. And straightway took his journey. क्योंकि उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया और एक को 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, यानी हर एक को उसकी लियाकत के मुताबिक दिया Yes. और परदेश चला गया। Amen. क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी सम्मति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। Then he that has received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. And likewise he that has received 2 he also gained other 2. But he that has received 1 went and digged in the earth and hid his Lord's money. इसको 5 तोड़े मिले थे, उसने फौरन जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और पैदा कर लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, मगर जिसको 1 मिला था उसने जाकर जमीन खोदी और अपने मालिक का रुपया छुपा दिया। Mm-hmm. Yes. बड़ी मुद्दत के बाद Yes. नेक्स्ट करो 16 वर्ष तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसकी 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छुपा दिए। After a long time, और बड़ी मुद्दत के बाद the Lord of those servants cometh और उन नौकरों का मालिक आया and reckons with them. और उनसे हिसाब लेने लगा। Yes. And so he that had received 5 talents came and brought other 5, जिसको 5 तोड़े मिले थे वो 5 तोड़े और लेकर आए, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. और कहा, ए खुदावन तूने 5 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. और उसके मालिक ने उससे कहा, ए अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, Thou hast been faithful over a few things. तू थोड़े में दयानतदार रहा, I will make thee ruler over many things. और मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। Enter thou into the joy of the Lord. और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। He also that had received 2 talents cometh and said, Lord, thou delivered unto me 2 talents. Behold, I have gained 2 other talents beside them. और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी पास आकर कहा, हे खुदावन तूने 2 तोड़े मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant.
और उसके मालिक ने उससे कहा, अच्छे और दयानतदार नौकर Thou hast शाबाश, been faithful over a few things. और I तू will थोड़े में दयानतदार रहा, many things. Enter thou into the joy of the Lord. और मैं तुझे बहुत चीजों का मुख्तार बनाऊं और अपने मालिक की खुशी में शरीक हूँ। Then he which had received the 1 talent और जिसको एक टोड़ा मिला था, came and said, वो भी पास आकर कहने लगा, Lord, ऐ खुदावन, I knew thee that thou art an hard man, और मैं तुझे जानता था कि तू सख्त आदमी है, and reaping where thou hast not sown, and gathering where thou hast not spread. और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता है, और जहाँ नहीं बिखेरा वहां से जमा करता है। And I was afraid, बस मैं डरा, I was feared, और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा I दिया, was feared, और मैं डरा, I was afraid, and I was feared. और मैं डरा, And oh, और मैं डरा, this guy have 1 talent. और उसके पास एक तोड़ा था, Which reason he shared with Jesus, और the master? और जो उसके बांटा उसने यीशु के साथ, What was the reason? क्या था उसकी He वजह said, क्या थी? I was afraid. उसने कहा कि मैं डरा, Read verse 25 और 25 आयत में हम देखते हैं, quickly. सो मैं डर गया Hello, what does it mean? और इसका मतलब क्या हुआ? The guy have 5 talents, और जिसके पास 5 थे, and he transferred a 5 to 10, और उसने उनको तब्दील किया 5 से 10 में, 2 to 4. 2 से 4, The guy have 1 talent. और जिसके पास सिर्फ एक तोड़ा था, He hide it और उसने उसे छुपा दिया, because of one thing. और सिर्फ एक चीज की वजह से, Fear. डर। Fear can hide your talent. और जो डर है वो आपके तोड़े को या आपकी सलाहियत को छुपा दे। Can I tell you a very horrible thing? और क्या मैं आपको बहुत खौफनाक बात बताऊं? When you will go to heaven, जब आप आसमान पर जाएंगे, Lord Jesus, यीशु मसीह, He will show you your exact abilities and talents. और वो आप पर जाहिर करेंगे आपके तोड़े या आपकी सलाहियतें, This was आपकी you, काबिलियतें, कि वो आप थे, but you didn't do anything. लेकिन आपने कुछ नहीं किया। I think I'm talking to somebody here. और मुझे लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ। No. Many people, they ask me, और बहुत से लोग मुझे सवाल करते हैं, how you know everything little. और कैसे तुम हर चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा इल्म रखते हो? How? कैसे? You have abilities to play music, you have abilities to do this, ability to do this. और आपके पास बहुत सी सलाहियतें हैं। It is not me. ये मैं नहीं हूँ, It is the God who has given me the talent. और ये मेरा खुदा है जिसने मुझे ये सलाहियत I बख्शी did है, not hide. और मैंने इसे छुपाई नहीं, I did not fear. मैं डरा नहीं, I open up myself to the Lord. और मैंने अपने आप को खोल कर रख दिया मेरे खुदा के सामने, Because when I will reach there, क्योंकि मैं वहां पर जाऊंगा I want to hear और मैं सुनना चाहता हूँ from the master और अपने मालिक से, or Daniel, और दानियल, faithful servant. और मेरे ईमानदार नौकर, Are you with me? क्या मेरे साथ है? The fear can change you. और डर आपको तब्दील कर देता है, It changed you. वो आपको तब्दील करके रख देता है, He make you what devil wants. और वो आपको वो बनाता है जो शैतान चाहता है कि आप बने। Today, let God strike that demon. और आज खुदा उस बदरू को या उस शैतान को खत्म करे, Let God strike that spirit of fear. और इस डर की रूह को बांधे। Did you get what we are studying? और क्या आप सीख रहे हैं कि हम क्या आज सीख रहे हैं? His Lord answered and said unto him, 26 ayat. और 26 आयत से हम देखेंगे, Look at this, the quality. और देखें इस आयत की काबिलियत, Look at the quality of the servant. और देखें उस नौकर की काबिलियत। 2 words master is using. और 2 लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, Not मालिक, faithful and good servant. No. और यहाँ पर उसने अच्छा और ईमानदार नौकर नहीं, Look, देखे क्या कहा, you wicked and slothful servant. और उसने कहा शरीर और सुस्त नौकर। No. No. Are you with me? क्या मेरे He's साथ है? saying wicked. और उसने कहा शरीर, The root of wickedness is devil. और इसकी जो जड़ है शरारत की या शरीरपन की, वो है शैतान। He's saying, you wicked and slothful servant. और उसने कहा शरीर और सुस्त नौकर, Thou knewest that I reap where I sowed not, and gathered where I have not strawn. और जहाँ नहीं बोया वहां से काटता, और जहाँ नहीं बखेरा वहां से जमा करता। He knew the Lord. और वो तो जानता था खुदा को, Still he hid.
लेकिन फिर भी उसने छुपाया। Many of you, आप में से बहुत से you know your Jesus. अपने यीशु को जानते हैं, You know his ability. और आप उसकी काबिलियत को जानते हैं, You know his goodness. और आप उसकी अच्छाई को जानते हैं, You know his grace. और आप उसके फजल को जानते हैं, You know his power. आप उसकी ताकत को जानते हैं, Still you hide yourself in you. और आपने अभी तक अपने आप को, अपनी जात को छुपा रखा है It's because of the spirit of fear. सिर्फ डर की रूह की वजह से। Are you with me? क्या मेरे साथ? If you have, so we will study the 3 more spirits और 3 और हम किस्म की रूहें पढ़ेंगे, right now. We already read in the scripture. और अभी हम पढ़ चुके हैं पहले ही कलाम में। Are we together? क्या मेरे साथ है? Spirit of fear. डर की रूह How it comes? कैसे ये आती है? When your original identity changed. और जब आपकी असली शनाख्त तब्दील हो जाती है। Why I took this issue very serious? और क्यों मैंने इस मुद्दे को उठाया बहुत ही सीरियस तौर पर? Because right now the believers, they don't understand what is the spirit of fear. और अभी जो ईमानदार इस वक्त है वो नहीं जानता कि डर की रूह क्या कर सकती है। What happened in the garden? क्या हुआ था बाग में? Even when the spirit of fear is on you, और हत्ता कि जब आप पर ये रूह होती है डर की, even when if God speaks to you, you also afraid or you also that fear. हत्ता कि आप जब खुदा आपसे बात करता है तब भी आप डर जाते हैं, आप खौफ में, दहशत में मुब्तला हो जाते हैं, Because you are already under the spirit of fear. क्योंकि आप पहले ही डर की रूह के नीचे हैं, Because your identity is already changed. क्योंकि आपकी जो शिनाख्त है वो पहले ही तब्दील हो चुकी है। When जब Adam and Eve sinned, और जब आदम और हवा ने गुनाह किया, let's read. आए पढ़ते हैं What happens? क्या हुआ। When God said, Adam, I was calling you from 1 minute or 2 minutes. और जब खुदा ने कहा कि मैं आदम तुझे आवाज दे रहा था या तुझे पुकार रहा था, Where were you? तू कहाँ था? What did Adam said? फिर आदम ने क्या कहा? Huh? मैं डर गया था। Hey. उसने कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और 9 मैं डरा। And the Lord God called unto Adam and said unto him, Where art thou? खुदा ने आदम को पुकारा और उससे कहा कि तू कहाँ था है? And he said, और उसने कहा, I heard the voice, और मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी and I was feared and afraid, और मैं डरा, because I was naked. क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छुपाया। Hide myself. और मैंने अपने आप को छुपाया। When the spirit of fear comes on you, और जब डर की रूह आप पर आती है, you hide your abilities. और आप अपनी सलाहियतों को, काबिलियतों को छुपा लेते You hide your beauty. और आप अपनी खूबसूरती को छुपा लेते You हैं, hide your servanthood spirit. और आपकी जो एक नौकर की हिम्मत की रूह है वो आप छुपा लेते You हैं, hide your singing. और आप अपनी गीत गाने की रूह को छुपा लेते हैं। Many of you, आप में से बहुत से, you speak very loud and very clear in your friend circle. और क्या जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो क्या आप बहुत ऊंचा नहीं बोल रहे होते, आप पुरजोश आवाज में But बात कर when रहे it होते हैं, comes to the church, you have fear to speak the word of God on this pulpit. और लेकिन जब आप खुदा के घर में दाखिल होते हैं तो मस्बे के ऊपर आपकी आवाज नहीं निकलती खुदा का कलाम पढ़ने के लिए, You do not have any kind of power to share your testimony to others. और हत्ता कि आपके पास इतनी ताकत नहीं होती कि आप अपनी गवाही को दूसरों से बांट सकें। Why are you hiding? क्यों आप छुपा रहे हैं? Tell your name. साथ वाले से कहिए, Why are you hiding? क्यों तुम छुपा रहे हो? There's a spirit of fear. और डर की रूह है। Are we together? क्या मेरे साथ है? So God gave that guy a 1 talent. और खुदा और फिर मालिक ने उस नौकर को 1 तोड़ा दिया। 1 talent. 1 तोड़ा, And what happens? फिर क्या हुआ? He hide it. और उसने उसे छुपा लिया, He hide it, yes. और उसने उसे छुपा दिया। Tell yourself today. और आज अपने आप से कहें, If you hide your identity, और अगर तुमने अपनी शिनाख्त को छुपाया you hide your glory. और तुमने अपने हिलाल को छुपाया। Are we together? क्या मेरे साथ है? Many ladies बहुत सी औरतें and many gents, और बहुत से मर्द they dance very well बहुत अच्छा नाचते हैं in weddings, शादियों में in school parties, और स्कूल की पार्टीज में, in college parties, कॉलेज की पार्टीज में in farewells, और मेनू पर, much more. बहुत ज्यादा। But when they comes to the church, लेकिन जब वो चर्च में आते हैं, as they enter, जैसे वो दाखिल होते हैं, you will see their hands are cutted.
और आप देखेंगे कि उनके ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ yes translated like this उनके हाथ टूटे their होते हैं feet totally cut off और उनके पाँव भी कटे होते हैं। even they let me explain even the people हत्ता के लोग they do not have power to just clap for Jesus और हत्ता कि वो उनमें इतनी ताकत नहीं रहती कि वो यीशु के जलाल they की are just ताली बजा सके they're just clapping like this और वो इतने ना बजाने के अंदाज में ताली बजा रहे होते हैं shame on them और उनको शर्म आनी चाहिए। spirit of fear डर की रूह। as they come outside और जैसे वो बाहर निकलते हैं if they listen a song in car और अगर वो कार में देख सुनेंगे कोई गाना they now their father devil is entering और फिर उनका बाप जो शैतान है उनके अंदर दाखिल हो जाता now है they start dancing और अब वो नाचने शुरू हो जाते हैं let God deliver you from fear और खुदा आपको रहाई बख्शे हर तरह के डर की रूह से। I'll tell you one thing क्या मैं आपको एक बात बताऊं? any kind of Goliath और किसी किस्म का जो है वो जूलियत you can't defeat आप उसे नहीं हरा सकते if you have fear अगर आप डर रखते हैं। can I tell you one thing क्या मैं आपको एक चीज बताऊं? the day spirit of fear leaves you और जिस दिन डर की रूह आपको छोड़ेगी you will see a one very giant और आप एक बहुत बड़ा देव you will see a giant और आप एक बहुत बड़ा देव when you have spirit of God and spirit of power in you और जब खुदा की रूह और ताकत की रूह आपके अंदर होगी he will tell you वो आपको कहेगा am I a dog क्या मैं एक कुत्ता हूँ? you come with a stone क्या तुम पत्थर लेकर आए हो? look at this देखें इस spirits know और रूह जानती है which spirit you have कौन सी रूह आपके अंदर है। now when David comes और अब दाऊद आया he said I comes और उसने कहा मैं आया हूँ in the name of the Lord और मैं खुदा के नाम से आया, यहोवा के नाम he से आया। don't fear मुझे तो डर नहीं है, no नहीं है। he don't fear और उसके पास कोई डर नहीं था because he did not have the spirit of fear क्योंकि डर की रूह नहीं थी he did not hide the inner David inside of him और उसके अंदर के दाऊद को उसने नहीं छुपाया। if he is feared from one animal और अगर वो एक जानवर से डर जाता if you are feared of one rat in the house और अगर आप एक चूहे से डरते हैं जो आपके घर में मौजूद है if you fear from lizard और अगर आप छिपकली से डरते हैं many people have this kind of thing और इस किस्म के डर बहुत से लोगों में होते हैं they use some English word phobia और फोबिया का इस्तेमाल किया, डर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है फोबिया का इंग्लिश में। they use the water phobia the stairs पानी phobia का डर, सीढ़ियों का डर, ऊंचाई का डर, it's not phobia ये फोबिया नहीं, it's spirit ये है रूह डर की। if your Jesus can walk on water what does stairs meaning तो अगर आपका यीशु पानी पर चल जा सकता है तो क्या माने रखती है ये ऊंचाई या सीढ़ियां? Syrian. We're together क्या मेरे साथ है? the fear of what पानी का डर। I will explain at the end how you can overcome और मैं आखिर में बताऊंगा कि आप इस पे काबू कैसे पा सकते हैं, the spirit of fear डर की रूह। how many people know the Psalm 23 और कितने लोग तेज ज़बूर जानते हैं? even the death हत्ता के मौत is a spirit वो भी एक रूह है it's a spirit और Yes. मौत एक रूह है, love is a spirit मोहब्बत एक रूह है, goodness is a spirit अच्छाई एक रूह है, mercy is a spirit रहम एक रूह है, prosperity is a spirit खुशहाली एक रूह है, wealth is a spirit दौलत एक रूह है on another hand और दूसरी तरफ lust is a spirit और हवस एक रूह है the fornication is a spirit और ज़नाकारी एक रूह है yes it's a spirit और ये and भी एक रूह another है। thing और दूसरी lying चीज lying और झूठ बोलना एक is a रूह है, spirit वो भी एक रूह है। if a person have the spirit flying on him he will lie और अगर किसी पर झूठ बोलने की रूह है तो वो झूठ बोलेगा yes he will lie और वो बोलेगा। because in the scriptures in the book of Chronicles तवारीख की किताब तवारीख की किताब in the book of Chronicles it says and the God sent the spirit in the mouth of the prophet और खुदा the ने अपने रूह lying को spirits और खुदा खुदा ने झूठ बोलने वाली रूह को भेजा हम्म, there is a spirit of lying और रूह है झूठ बोलने की। pray with me क्या मेरे साथ है? think like this I mentioned many speeches the spirit of fear is a spirit who hide your identity और डर की रूह वो रूह है जो आपकी काबिलियत को छुपा देती है what exactly you are और असलियत में जो आप हैं, आपकी पहचान, it will hide और वो छुप जाएगी।
what exactly you are in Christ. और यीशु मसीह में असलियत में आप क्या है, हकीकत में आप क्या है। If the spirit of fear comes, और जब डर की रूह आएगी it will hide you. वो आपको छुपा देगी। Adam, where are you? और आदम तू कहाँ है? He said, I heard your voice and I feared. और उसने कहा कि मैंने तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। How he feared? और कैसे वो डर गया? And he hid himself in the leaves. और उसने अपने आप को पत्तों में छुपा लिया। He hid. और उसने अपने आप को छुपा लिया। He hid. और उसने छुपा लिया। Please listen now carefully. बहुत एहतियात से सुनिए। When God called you to do his work, और जब खुदा आपकी जिंदगी पर खुदा की बुलाहट होती है उसके काम के when God लिए, called you to do the work, as God called Adam, where are you? और जैसे खुदा ने आदम को पुकारा था, खुदा आपको भी पुकारता है कि तू कहाँ है। Adam lost. और आदम खो गया. खो गया। He lost his location of serving. और उसने अपनी खिदमत की रूह को खो दिया। Location. और अपनी जगह को खो दिया। That's why he called, where are इसलिए वो उसे पुकारा है कि तू कहाँ है, because he was under the fear क्योंकि वो डर के अंदर चला गया। and he hid. और उसने छुपा लिया। He left the job. और उसने छोड़ दिया, काम को छोड़ दिया। So whenever God called you to serve or do any kind of work in the kingdom of God, और खुदा की बादशाही में जब आपको खुदा बुलाता है कि तू कोई काम करे, the first thing, पहली चीज, if you say yes, और अगर आप कहते हैं ठीक है मैं करूंगा, and then you start hiding, और फिर आप छुपना शुरू कर दें, the spirit of fear is on you और आप पर डर की रूह है, because you are hiding yourself. क्योंकि आपने अपने आप को छुपाया। You are hiding. आपने छुपाया। The years ago, और कुछ साल पहले की बात है, you were doing this. और आप ये कर रहे थे, As you are doing good, और जैसा कि आप अच्छा कर रहे थे, you start leaving the job. और आपने छोड़ दिया काम करना, Spirit of fear comes on you. और आप पर रूह आ गई डर की। Today, God is calling you. और आज खुदा आपको बुला रहा है। That's why in the Bible, 365 times, और इसी वजह से 365 दफा कलाम में कहा गया है, fear not, डरो मत, I am the Lord. मैं हूँ खुदा। Do not fear. डरे मत। With क्या मेरे spirit of fear और जो डर की रूह है, can hide your original personality. और आपकी जो जाती शख्सियत है उसे छुपा देती है। Find anybody किसी शख्स को ढूंढे in the Bible कलाम मुकद्दस में who was used by God. जो खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ There was no fear. और उसको डर नहीं था। Holy Spirit, और पाक रूह, He loves to work with those people who don't fear. और वो पसंद करते हैं उन लोगों के साथ काम करना जो डरते नहीं हैं। Moses was not feared. और मूसा को डर नहीं था, He just killed the guy. और उसने उस शख्स को कत्ल कर दिया। Do not fear what will happen next. और उसको इस बात का डर नहीं था कि आगे क्या होगा। No more fear. और ज्यादा डर नहीं। He started fighting with the Pharaoh और उसने फिरौन से लड़ाई शुरू कर दी, who was ruling on them not 40 days, और वो सिर्फ 40 दिनों के लिए उन पर हुक्मरान नहीं था, not 40 years, 40 साल के लिए नहीं, 400 years. 400 साल के लिए। Spirit was on the people who from 400 years. और वो रूह 400 साल तक उन लोगों पर थी। But only one guy. लेकिन सिर्फ एक शख्स, When he met God on the और mountain, जब वो पहाड़ पर खुदा से मिला, and he said, God, who am I? और फिर खुदा ने कहा उसने कहा खुदा से, मैं कौन? कौन हूँ? Said, who am I? उसने खुदा से कहा मैं कौन When हूँ? you know who you are, the fear leaves you. और जब आप जान जाते हैं अपनी जात को कि आप कौन हैं, तो डर की रूह आपको छोड़ He देती says, Moses, you are the prophet. और उसने कहा मुझसे तू एक नबी है, You will deliver my people. और तू मेरे लोगों को रिहाई बख्शे, You. तू मेरे लोगों को रिहाई दिलाएगा। When he met God, और जब वो खुदा से मिला, he received the Spirit of God. और उससे खुदा की रूह मिली, Then he entered into Egypt, और फिर वो मिस्र में दाखिल हुआ, not with the spirit of murder, और वो कत्ल की रूह से, कत्ल की रूह से नहीं, not with another spirit. He और entered किसी with और the रूह से नहीं, Spirit of God. और वो खुदा की रूह के साथ दाखिल हुआ। Today I declare, और आज मैं आपकी जिंदगी पे बोल, any kind of fear, और किसी तरह का भी डर, let that fear be over. और वो खत्म हो आपकी जिंदगी से, Let that fear be over. और वो डर खत्म हो आपकी जिंदगी से। You listening me now? क्या मुझे सुन रहे? 2 Timothy, दूसरा तिमोथियस, the same scripture. और वही हवाला, God
God has not given us the spirit of fear, but of power. और खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत की Power. कुदरत। So the first key और पहली चाबी to remove the spirit of fear, और डर की रूह को खत्म करने के लिए you need the spirit of power. आपको ताकत की रूह की जरूरत है। Spirit of power. और ताकत की रूह की जरूरत है, Spirit of power. कुदरत की रूह की जरूरत है। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Let's read. बल्कि क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। So when you work with these three spirits, और जब आप इन तीन रूहों के साथ काम करते हैं, so when you receive the और जब spirit of power, जब आपको कुदरत की रूह मौसूल होती है, then you know what is good and what is evil. तो फिर आप जान जाते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। So power can move in both sides. और ताकत जो है वो दोनों तरफ काम करती है। Power of good, ताकत अच्छे के लिए, power of evil. ताकत बुरे के लिए। So when you receive the good power of God, जब आप खुदा से अच्छी ताकत लेते हैं now you have ability of. और अब आपके पास ताकत की काबिलियत है। Many people they say this guy is very और वो कहते हैं, कोई लोग कहते हैं कि ये शख्स बहुत ताकतवर है, is very powerful, बहुत ताकतवर है, powerful speaker, और एक बहुत ताकतवर बोलने वाला, powerful pen. और एक बहुत ताकतवर लिखारी या पेंट करने वाला, His poetry is very powerful. और इसकी शायरी बहुत ताकतवर है। What is his power? उसकी ताकत क्या है? His ability. उसकी काबिलियत। That's why he says, you shall receive ability. और इसीलिए कहा गया कि तुम ताकत पाओगे Ability, और काबिलियत. काबिलियत पाओगे। What is ability? और फिर काबिलियत क्या है? If you have godly ability, you have the power. और अगर आपके पास खुदाई काबिलियत है तो आपके पास ताकत है। God speaks. He खुदा don't कह fear रहा है, anybody. उसने कहा तुम किसी से नहीं डरते। Number one, पहले नंबर, you need a spirit of power. और आपको रूह की ताकत की रूह की जरूरत है। I declare, let God give you the spirit of power. और मैं आज आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ कि खुदा आपको कुदरत की ताकत की रूह बख्शे। What is the purpose of power? और क्या मकसद है ताकत का? Then what is the purpose of power? और ताकत का क्या मकसद है? Number one, पहला, when the spirit of power comes on you, और जब ताकत की रूह आप पर आती है, number one, he changes your identity. वो आपकी पहचान को तब्दील करती है। Number one, what does that mean? फिर पहले नंबर पे इसका क्या मतलब हो? He will take out your hidden talents out. और वो आपके छुपे हुई सलाहियतों को बाहर निकालती है। Listen, look at me. Peter did not heal any man in the presence of Jesus. यीशु मसीह की मौजूदगी में पतरस ने किसी को भी शिफा नहीं बख्शी, He feared और वो डरता था। when Jesus captured by the soldier. और जब यीशु मसीह पकड़े गए सिपाहियों के He जरिए, feared and left. और वो डर गया और छोड़ गया। But the Bible says, when you shall receive power, when the Holy Ghost comes कहता on है कि जब पाकरून पड़ता तो कलाम कहता है कि you, in शिरकत chapter पाओगे। 4, और चौथे बाब में, he says, I do not have gold and silver. और वो चौथे बाब में कह रहा है कि मेरे पास सोना और चांदी तो The नहीं, thing I have, और जो चीज मेरे पास है I give unto you. और मैं तुम्हें देता हूँ, Rise up in the name of यीशु Yeshua. के नाम में उठो। यीशुआ हमाशिया के नाम में उठो। And he just raised. और वो उठ खड़ा हुआ। What does this ability? और ये काबिलियत क्या हुई? The spirit of power in him. और उसके अंदर थी ताकत की रूह। Whatever you have inside of you, जो कुछ आपके अंदर है, जो ताकत आपके the अंदर है, spirit of power comes to come out. और जब वो ताकत आप पर गलबा पाती है तो वो बाहर निकलती है सलाहियत। You know me. कि आप सीख रहे हैं How to defeat fear. कैसे हमने हराना है डर को, कैसे हमने इसके साथ निपटना है। Write down today. Go into your house and write down your good abilities. और आज अपने घर जाइएगा और आपके अंदर जितनी अच्छी काबिलियतें हैं वो लिखिएगा। If you are a good writer, और आप एक अच्छे लिखारी हैं, if you are a good computer master, और अगर आप एक अच्छे कंप्यूटर पे काम if करने you are वाले हैं, a good reader, और आप एक अच्छे पढ़ने वाले हैं, if you are a good speaker, और अगर आज अच्छे बोलने वाले हैं, translator, और अगर आप एक कुछ अच्छे तर्जुमा करने वाले हैं, write down what are your abilities लिखें अपनी काबिलियतें, सलाहियतें जो आपके अंदर है, and receive power from the Holy Spirit. और पाकरू से वो ताकत मौसूल करें। Try to take these things out. और कोशिश करें कि ये चीजें और काबिलियतें आपके अंदर से बाहर निकले और नुमाया हो। Are you with me? क्या मेरे साथ है? Many ladies have good voice. और बहुत सी लड़कियां हैं जिनकी बहुत अच्छी आवाज है, They can sing in washrooms. और वो वॉशरूम में तो गा सकती है, Very loud, बहुत ऊंची आवाज में, very sweet. और बहुत प्यारी मीठी आवाज They में, can sing while cooking.
और वो उस वक्त बिगाड़ी होती है जब खाना When पका रही you होती है। give them mic in the church choir, और जब आप चर्च की क्वायर में अगर उनको माइक पकड़ाए their neck and their vocal. और उनका गला बंद हो जाता है, What is this? ये क्या है? Spirit of fear. ये है डर की रूह। You are not taking out the good ability of yourself. और अब अपने अंदर की अच्छी सलाहियतों को बाहर नहीं निकाल रही। Same Peter वही पतरस who left Jesus. जिसने यीशु को छोड़ दिया, The same Peter वही पतरस standing in the crowd जो कि खड़ा है मजमे में and was witness of Jesus. और वो है यीशु मसीह का गवाह। What does it mean? इसका मतलब No क्या हुआ? fear. कोई डर नहीं। Do you know? क्या आप जानते हो? Do you know क्या आप जानते हो? about 12 disciples? और उन 12 शागिर्दों में से How they died? वो कैसे मरे? All 12 disciples, 12 के 12 शागिर्द, all सब। 4 kinds of death it was given to the 12 disciples. और उन 12 को 4 किस्म की मौत दी गई। Number 1, पहले नंबर पर they were stoned. और उनको पत्थरों से मारकर मारा गया। Do you know Andrew? और क्या आप जानते हैं इंद्रियास को? Very good guy. और बहुत अच्छा इंसान। He was doing the administration work in Jesus ministry. और यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा था। Do you know what happens to him? और आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ? They bind his feet और उन्होंने उसके पांव बांध दिए with the horse और घोड़े के साथ उसके पांव बांध दिए in the whole city. और पूरे शहर में He was dragged by the horse. और घोड़े के पीछे उसको लटका के दौड़ाया गया, Dragged, उसको खींचा गया। खिंचाया गया. Yes. And they announced to the people, stone him until he died. और लोगों से कहा गया कि इसको उस तक पत्थर मारो जब तक ये मर ना जाए। They do not fear of death. और उनके अंदर डर नहीं था They मौत have का, the spirit of Christ. क्योंकि उनके अंदर मसीह की रूह थी। Are you with me? क्या मेरे साथ है? How you come under fear with 1 or 2 word of any person? और कैसे आप किसी शख्स के 1 या 2 लफ्जों से डर में आ जाते हैं? Another disciple. और दूसरा शागिर्द। What is the last book of the Bible? और कलाम मुकद्दस की आखिरी किताब कौन सी है? Huh? अच्छा, प्रकाशित वाक्य. Revelation. काश। Do you know his writer? और उसके लिखारी को आप क्या जानते हैं? They take him and they put him in the oil. और उन्होंने उसको लिया और उसको जलते हुए गरम तेल में फेंक दिया। And what happens to him? फिर क्या हुआ उसके साथ? He didn't die. वो नहीं मर। He came out और बाहर आया and he writes the book of Revelation. और उसने मुकाशफा की किताब लिखी। Disciple of Jesus. और यीशु मसीह का शागिर्द, No fear. कोई डर नहीं। Burning oil. और जलते हुए गरम तेल। Can you imagine if the oil comes on your skin, it creates a watery pimple. और क्या आप सोच सकते हैं कि जब तेल आपके जिस्म पर या आपकी जिल्द पर गिरता है तो एक पानी का बबल ऊपर बन जाता है? How many people have it? कितने लोगों को Experience. इसका Experience. मुशाहिदा हुआ है? Especially those ladies who work in the kitchen. और जो घरेलू खवातीन घरों में किचन में काम करती है उन सब के साथ ये वाकया हुआ। How many have नो experienced it? तजर्बा इस बात। Can you explain the pain? क्या आप उस डर को बयान कर सकते हैं Pain. और उस दर्द को बयान कर सकते हैं? Very little pain. It's not pain. It's really irritating. और ये सिर्फ एक दर्द या जलन होती है। If I take you and put you in the big bowl of oil burning with fire, what will happen to you? और क्या होगा आपके साथ अगर आपको गरम तेल के कड़ाह के अंदर डाल दिया जाए? Because he was having the spirit of क्योंकि उनके पास खुदा की रूह मौजूद है। very gloriously he was taken out. और ये मौजज़ाना तौर पर वो बाहर आ गया, जिंदा। He did not fear. और उसको डर नहीं था। I will take some time and I will give you the information about all the disciples, how they were died, where, when, and with which kind of persecution.
और अगर वक्त हुआ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके जितने यीशु के जितने शागिर्द हैं वो कैसे मरे, किस जगह पे मरे और किन अजियतों से गुजरे। You need spirit of power. और Number one. आपको ताकत की रूह की जरूरत है। When it comes, it open up your abilities. और जब ये आप पर आती है तो आपकी काबिलियतों को खोल के रख देती है। Exact. Your exact personality will come on that day when you receive the Holy Spirit. जब आप आकरू लेते हैं आपकी असली शख्सियत निखर के बाहर आती है No more fear. और डर नहीं। And the Bible says, और and of love. कलाम कहता है और मोहब्बत। Second spirit is the spirit of love. और दूसरी रूह मोहब्बत की रूह। If you don't love God, और अगर आप खुदा से मोहब्बत you ना need करें a spirit of love. और आपको जरूरत है मोहब्बत की रूह की। When you receive the spirit of love, और जब आप मोहब्बत की रूह को पा लेते हैं you will love people without reason. और आप किसी भी वजह के बगैर लोगों से मोहब्बत करते You हैं, like it or not, आपको पसंद हो या ना, black or white, काला या गोरा, smelly or fragrance, और अगर खुशबूदार है या बदबूदार है you will love them. और आप उससे मोहब्बत करेंगे। In disease or healed, और अगर क्या वो तंदुरुस्त है या वो बीमारी वाला है, you will love them. उन्हें मोहब्बत करेंगे Because you have the spirit of love. क्योंकि आप पास मोहब्बत की रूह If है। you have the spirit of love, और अगर आपके पास मोहब्बत की रूह है you will remove the spirit of fear. और आप मिटा सकते हैं डर की रूह को, You will speak. आप बोल सकते हैं, You will sing. आप गा सकते हैं Because you love your God. क्योंकि आप अपने खुदा से मोहब्बत करते हैं। That's why you are singing for Him. इसीलिए तो आप उसके लिए गाते हैं Not afraid or feared from anything. और आपको किसी चीज का डर खौफ नहीं है। And number three is a sound mind. और तीसरा है तरबियत की रूह। What does it mean? का मतलब क्या है? Sound mind means the mind of understanding. और तरबियत की रूह कौन सी रूह होगी जो हम कह सकते हैं When you receive the समझने वाली रूह spirit of understanding, और समझदार या समझने वाली रूह, fear is over. और फिर डर खत्म हो जाएगा। If you don't know the work of Christ, और अगर आप नहीं जानते मसीह के काम को if you don't know what the Christ has done for you, और क्या किया मसीह ने आपके लिए, then you will be under fear. तो फिर भी आप डर में हैं। If you know और अगर आप जानते and you understand the Christ, और यीशु मसीह को समझते हो He take out you from darkness और kingdom उसने आपको अंधेरे की बादशाही से निकाला and entered you into the kingdom of light. और आपको रोशनी की बादशाही में लेकर आया, Don't be under fear. तो आप कभी भी डर की रूह में नहीं रहेंगे। Are you with me? क्या मेरे साथ? These three spirits, और ये तीन रूहें हैं the solution of defeating or overcoming the spirit of fear. और डर की रूह पर फतह पाने के और उसको हराने के लिए तीन रूहें हैं। So now I'm coming to the practical way. और अब मैं अमली तौर पर जो काम करना है उसकी तरफ आ रहा When हूँ। you are feared, और जिस चीज का आपको डर है try to do it. करने की कोशिश करें उस डर पर काबू। Try to do those things which you are feared. और जिन चीजों से आप डरते हैं उन कामों को करने की कोशिश करें। Number one, पहले नंबर पर start doing और करना शुरू करें the things you are feared. जिनसे आप डरते हैं। Are you feared? कि आप Something. डरते हो किसी Yes. चीज से? Much more. Many. बहुत चीजों में। Go today in your house and जाएं आज अपने make a घरों में, list. लिखें और उसको लिस्ट बनाएं Where I am weak, और कहाँ पर आप कमजोर हैं, where I am feared. कहाँ पर आप डर जाते हैं, Where? कहाँ Where? कहाँ। Now make the good abilities in you. और अपने अंदर जो आपकी सलाहियतें हैं Make a list. उसकी लिस्ट बनाएं, The good abilities. आपकी अच्छी सलाहियतें, And ask God, और खुदा से कहें give me the power मुझे वो ताकत to do it. कि मैं करूं। Ask God for the spirit of love. और कहें खुदा से मोहब्बत की रूह, And ask God the spirit of sound mind. और खुदा से कहें कि मुझे तरबियत की रूह बख्श। Go together. क्या मेरे साथ है? If you practice these three spirits, अगर आपने इन तीन रूहों की अमली तौर पर किया and when the sound mind you have, और जब आपके पास तरबियत की रूह आ गई sound mind comes by the sound knowledge of God. और खुदा के जो तरबियत का इल्म है उससे हमें तरबियत की Yes. रूह मिलती है Sound mind comes by the knowledge of God. और खुदा के इल्म से तरबियत की रूह मिलती है। And और the spirit of love comes by reading Christ's lifestyle. और यीशु मसीह की तर्ज जिंदगी को पढ़ने से मोहब्बत की रूह आती है। When you read his life and you start doing what he said. और जब आप यीशु मसीह की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसने क्या किया। Number one, और पहले the नंबर spirit of power और ताकत की रूह, comes when you understand the Holy Spirit. और जब पाक रूह को समझेंगे तब ताकत की रूह आएगी।
Go and study Holy Spirit. और जाएं और पाकरू का मुतालिया करें Study Jesus. और यीशु मसीह की जिंदगी का मुतालिया And करें study the Word of God. और खुदा के कलाम को पढ़ें। When you do these three things, तो ये तीन चीजें जब आपने कर ली you will receive the Spirit of power, और Spirit आपको of love, और and Spirit आपको of sound mind. और आपको कुदरत की मोहब्बत की और तरबियत की रूह मिलेगी Then your fear will not stay in your heart. और कभी भी आपके घर में आपकी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं। You will speak like the God is speaking to people. और आप इस तरह बात करेंगे जैसे खुदा लोगों से बात करता है And God will use you as His mouth. और खुदा अपने मुंह की तरह आपको इस्तेमाल करेगा। God खुदा did not send angels और फरिश्ते नहीं भेजता preach on the earth. कि जमीन पर वो तबलीग करें We don't trust angels. और वो फरिश्तों पर फरिश्ते पर यकीन नहीं रखता ट्रस्ट वो उन पर ट्रस्ट नहीं करता. He trusts on sinners, और वो गुनाहगारों पर यकीन करता है human beings like you and me. और आप और मेरी तरह इंसान Preach. कि वो तबलीग करे। Even angel in the New Testament, angel come to Cornelius. और हत्ता के नए अहद में करनेलियस के पास फरिश्ते आए Angel did not preach. लेकिन उन्होंने कोई मुनादी नहीं की। Angel did not preach. उन्होंने कोई मुनादी He नहीं की said, "Go to Simon Peter. और उन्होंने कहा कि पतरस के पास जा He will preach you. और वो He will show you and he मुनादी will guide करेगा you the और वो knowledge." तुम्हें रहनुमाई करेगा। Either you can see angel. और हत्ता कि आप फरिश्तों को देखें भी He will come and he will guide and instruct you. Go to that guy. और हत्ता कि वो आएंगे आपकी रहनुमाई करेंगे How और much फिर the क्या love करना है। of God is for you. और कितनी मोहब्बत है आपके लिए खुदा के पास God wants you to preach. और खुदा चाहता है कि आज आप मुनादी करो God wants you to worship. और वो चाहता है कि आप उसकी प्रस्तुति करें God wants you to preach, कि वो चाहता है कि आप उसकी मुनादी to करें teach, और आप उसकी तालीम दें to take some opportunities और कुछ खास किस्म की अपॉर्चुनिटीज को हासिल and करें do the work, और काम करें खुदा का not in angels. और फरिश्ते नहीं कर Angels सकते are doing their own और duties. फरिश्ते तो अपना काम कर रहे हैं जो उन्हें करना है Preaching is your responsibility. लेकिन मुनादी आपका काम है। And this spirit comes on you. और जब ये रूहें आप पर उतरती है The fear will leave you. फिर आपको डर की रूह छोड़ देगी। God bless you. खुदावंद आप सबको बरकत दे I declare और मैं आपकी जिंदगी पर बोलता by the last sentence of the word, हूं और इस आखिरी जुमले को इस आयत के it's a prophetic word for you. और ये नबूवती अल्फाज है आपके लिए The Lord is saying, और खुदा कह रहा है fear not. डरो मत I am the मैं तेरा खुदा हूँ who refuge you. और जिसने तुम्हें You are, आजाद किया। you are आप in the place of God's house. और आप खुदा के घर में हैं। Imagine you are in the heart of Jesus. और सोचे कि आप यीशु के दिल में हैं Now you do not have fear. और अब तो आपके पास डर नहीं है You are in Christ. और आप मसीह में हैं। Nobody can harm you. कोई शख्स आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। Fear not. डरे मत। Today I declare by my prophetic tongue, और मैं अपनी नबूवती जुबान से आपकी जिंदगी पर बोलता हूँ by the power of the Spirit of God, और खुदा की रूह की ताकत से let Holy Spirit remove fear from your house, your mind, and your body. आपके जहन से आपके घर से आपके जिस्म से डर की रूह को पाक रूह खत्म करे In Jesus' name. यीशु के नाम से In Jesus' name. यीशु के नाम से In Jesus' यीशु के नाम से name. Amen. God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Let's pray. आए हम दुआ करें। Let's pray. Be in this. Let's pray.